کبھی گاڑی کے پیچھے سے رویہ نہ لکھوانا کہ یہ میری ماں کی دعا ہے، اپنے والد کو نہ بھولنا۔ اصل میں جب پوچھتا ہوں نا بولتا کوئی نہیں آگے سے کہ اس کی کیا وجہ، مثلا آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ جو آپ یہ لکھواتے ہو کہ یہ میری والدہ کی دعا ہے، والد کے حوالے سے کیا آپ کے ذہنوں میں موجود ہے کہ آپ اس کے لیے اللہ حضرت جی والدہ دعا کرتی ہے، والد دعا بھی کرتا ہے، پتر ساتھ مزدوری بھی کرتا ہے۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے پھر تو اس کا ڈبل حق ہے، وہ دعا کرتی ہے، وہ دعا بھی کرتا ہے، وہ مزدوری بھی کرتا ہے، وہ دعا بھی کرتا ہے، مزدوری بھی کرتا ہے، فیسیں بھی دیتا ہے، وہ دعا بھی کرتا ہے، مزدوری بھی کرتا ہے، فیسیں بھی دیتا ہے، کتابیں بھی لے کے دیتا ہے، بیگ بھی لے کے دیتا ہے، شوز بھی لے کے دیتا ہے، یونیفارم بھی لے کے دیتا ہے، جاتے ہوئے پاکٹ منی بھی ڈالتا ہے آپ کی جیب میں۔ کیوں اس کو نکالا گیا حضرت اس کھاتے سے؟ کوئی اصل میں بولتا نہیں کہ چلو پتہ لگے کہ وجہ کیا بنی ہے حضرت، کیوں اس کو نکال دیا گیا، کہاں آپ نے اس میں کمی دیکھی ہے حضرت؟ اللہ کے بندے جب تو نہیں تھا، کبھی شیخ الحدیث صاحب، کبھی سید صاحب، کبھی مفتی صاحب، کبھی کہیں تجھے کیا پتا کہاں کہاں جا کے اس نے تیرے لیے دعائیں کی ہیں؟ کتنی بار تیرے لیے داتا صاحب گیا، کتنی بار تیرے لیے میاں میر گیا، کتنی بار تیرے لیے قصور گیا، کتنی بار تیرے لیے پاک پتن گیا، یا اللہ پتر دے دے، یا اللہ پتر دے دے۔ میں تقریباً جو مجھے وقت گزر گیا حضرت جی، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، اللہ ماشاءاللہ کبھی حضرت جی بیٹی کے لیے کوئی چٹ آئی ہو، آتی بیٹے کے لیے، لیکن جب بیٹے کی باری آتی ہے تو پھر بیٹے کے نخرے دیکھنے والے ہوتے ہیں، پھر بیٹے کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا باپ کے لیے، پھر بیٹے کو دوست عزیز ہو جاتے ہیں، پھر بیٹے کو جناب محفلیں عزیز ہو جاتی ہیں، پھر بیٹے کو پان کی دکان عزیز ہو جاتی ہے، پھر بیٹے کو یار عزیز ہو جاتے ہیں، جس کے لیے پتہ نہیں وہ کہاں جا کے دعائیں کی، فریادیں کی، منتیں کی، جو ہے نا وہ جناب کنو پنجابی جی کہتے ہیں سکھنا سکھیاں حضرت جی، لیکن جب باری آتی ہے بیٹے کی تو کبھی یہ بھی نہیں ہوا۔ اچھا کو یہاں بیٹھا ہے ایسا جس نے کبھی جاتے ہوئے اپنی بیوی کو کھڑا کر کے یہ کہا بھائی اج گھر چ او پکانا ہے جو میرے ابو جی آکھن؟ جانے ہیں کبھی اسپیشل بیوی کو، بھائی دل جو ہی کرنی ہے نا ابو جی کی، وہ تو پوچھتے تھے، بتاؤ کبھی کسی نے کھڑا کر کے بیوی کو یہ کہا ہو بھائی اللہ کی بندی آج وہ بنانا جو میرے ابو جی کہیں گے، یا کوئی یہ بیٹھا ہو جو رات کو آ کے پوچھتا ہو اپنے ابو جی، ابو جی سارا دن کیا کیا؟ اللہ کے بندوں وہ نہ مرتے اتنی جلدی، ہمارے رویے مار دیتے ہیں ان کو، ہماری بے توجہی مار دیتی ہے ان کو، وہ بولتے نہیں ہیں، والدین ہیں جی آپ کی خوشی میں خوش ہیں، دیکھتے سارا کچھ ہی ہے۔ اور میں تو جب آتا تھا کام سے سب سے پہلے ہاتھ اٹھا کے دو کہ میں اس کو اٹھایا کرتا تھا، میرا پتر، بڑے اس کو باہر لے کے جاتا تھا، بڑے فخر سے بتاتا تھا میرا پتر۔ اب بولے اٹھ کے کو پتر، اگر کو پتر بھی کبھی لے کے گیا ہو، ہم کر ہی نہیں سکے، ہم نہیں بیٹا ان کا حق ادا کر سکتے، ہم ان کا حق نہیں ادا کر سکتے، نہ والد کا، اور اکثر اپنی والدہ سے، اپنے والد سے معافی مانگا کرو، ابو جی میں تہاڈا حق نہیں ادا کر سکتا، امی جی میں تہاڈا حق نہیں ادا کر۔ اگر کوئی یہاں بیٹھے نا جو بڑا دعوے دار ہے کہ جی میں بڑا خدمت گزار ہوں، میں اس سے بھی مخاطب ہوں، آپ سے بھی حق نہیں ادا ہو ہی نہیں سکتا جی۔ وہ بیٹا تیری ماں تو وہ ہے جس نے تیری پخانے والی کئی بار ٹانگیں دھوئی ہیں، تیری ماں تو وہ تھی، وہ ہے جس نے کئی بار تیرے پخانے والے کپڑے دھوئے ہیں، تیرا والد تو وہ ہے جو تجھے کندھے پہ اٹھا کے باہر لے کے جایا کرتا تھا، اس نے انگلی پکڑ کے تجھے چلانا سکھایا، اپنا خون تجھے پلایا اس نے، تو نے اس کا کیا حق ادا کر؟ معافی مانگا کرو، اور صرف ماں سے نہیں والد سے بھی، امی جی سی تہاڈا حق نہیں ہوتا، ابو جی سی تہاڈا حق نہیں ہوتا، اور دونوں میں ڈنڈی نہیں مارنی، دونوں سے محبت کرنی ہے، والد سے بھی بڑی محبت کرنی ہے اور اپنی والدہ سے بھی بڑی، کیونکہ ہے نا حضرت قصور پھر ادھر سے ہی ہوا ہے حضرت۔ میں اس دن بہت بڑا نام ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی کیوں، وہ بھی حضرت یہی کہہ رہے تھے وہی آج جا کے نا سارے اپنی ماں سے معافی مانگنا، پھر ان کے بعد میرا بیان تھا، پھر میں تھوڑا ڈر بھی گیا، لیکن پھر میں نے عرض کی میں حضرت نے شاید والد کو نا میرے لیے چھوڑ دیا، تو حضرت نے والدہ کے والے سے تربیت کی ہے، تو میں یہ عرض کر دیتا ہوں آپ اپنے والد سے بھی جا کے معافی مانگنا، دونوں سے پتر، دونوں کا بڑا حق ہے۔ روز رات کو
अपने वालिद साहब के कंधे दबाने हैं, वली बन जाओगे वली। अपनी वालदा साहबा के पाँव दबाओ। पुत्र थक गए हैं ये पाँव, थक चुके हैं ये हाथ तुम्हारी रोटियां बना बना, तुम्हारे कपड़े धो धो के, तुम्हारे कपड़े प्रेस कर करके थक चुके हैं हाथ। अब जरूरत है कि इनको दबाया जाए, दोनों को दबाओ रात को। और मेरे बुजुर्ग एक बात सुनाया करते थे कि कोई वालिद बैठा था, तो बच्चा ना सेन में छोटा बैठा था, वो दीवार पे कौवा बैठ गया आके। ये जब आप खुद वालिद बनोगे ना आपको पता चलेगा, जो बच्चा नवा नवा बोलता है ना बड़ा सोना लगता है बंदे को, कुछ खून अपना होता है है, उसका बोलना बंदे की जान लेता है। जी एक बार वो बच्चा था नया नया, उसने बोलना शुरू किया, वो दीवार पे कौवा आके बैठा, देखा पहले भी कई बार था, बोलना नहीं आता था, अब बोलना आ चुका था। उसने चंद जुमले इकट्ठे करके अपने अल्फाज इकट्ठे करके अपने वालिद को कहता है, अबू जी ये जो दीवार पे आके बैठा है इसको क्या कहते हैं? वालिद की खुशी की तो इंतहा नहीं थी, वो आके ना बेटे की वो चूम के ना गाल, कहता है बेटा ये जो दीवार पे बैठा है इसको कहते हैं कौवा। वो बेटे से कौवे की अदायगी ठीक नहीं हुई, वो फिर पूछता है अबू जी की, वो फिर कहता है बेटा कौवा। वो फिर अदायगी नहीं हुई, वो फिर पूछता है बेटा की, वो हर बार ना मुंह चूम चूम के कहता है बेटा कौवा। वो 40 बार बेटे ने पूछा और बाप ने 40 बार मुंह चूम के कहा कौवा। वक्त बदल गया, वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। वो जो वहां था वो बूढ़ा होके चारपाई पे आ गया, और जो वहां छोटा था वो जवान होके वहां चला गया। वो एक दिन ना उसी तरह दोनों बाप बेटा बैठे थे, वो कौवा बैठ गया आके दीवार पे, बाप कई साल पीछे चला गया। उसको बेटा याद आया, ओहो एक बार इसने भी तो पूछा था ना दीवार पे क्या बैठा है, तो मैंने चूम के मुंह कहा था कौवा। वो 40 बार इसने पूछा था, मैंने 40 बार कहा था, चलो आज मैं पूछता हूँ भला क्या करता है। वो अपने बेटे को कहता बेटा अब नजर नहीं आता, तेरी आंखों से देखना है, तो जरा ये देख के तो बता के दीवार पे क्या बैठा है। टूट के पड़ गया, और नहीं नजर आता तो जरूर देखना है। एवं हर वेले बेतुकियां गल्लां, वो काम भी कर लेंदे करो मैनू, कि हम नहीं करते इस तरह, करते हैं करते हैं इस तरह। वो फिर दिल को लगी, फिर कहता पुत्र हुण सुनिया भी नहीं जाता, हुण सुनना भी तेरे कन्ना नाल, की कहना है की बैठा कंध ते। और गुस्सा, अबू जी की हर वेले बेतुकियां गल्लां, नहीं सुनिया जाता, नहीं वेख्या जाता, तो चुप कर रो, नहीं वेख्या सुनिया जाता, एवं कोई गल नहीं कोई वजह नहीं, एवं बेतुके सवाल पे करी जाते। बहरहाल दीवार ते कौवा बैठा है, बाप को याद आ गया, जब इसने पूछा था मैंने 40 बार मुंह चूम के कहा था कौवा, मेरी बारी आई तो दूसरी बार में गुस्सा आ गया। बाप रो पड़ा, अब बेटा था दिल नरम हुआ गया, नहीं हूं बूजी रोन वाली केड़ी गल है। वो कहता बेटा जब तूने पहली बार कौवा दे के पूछा था ना, तो मैंने तेरा मुंह चूम के कहा था कौवा, तुझसे कौवे की अदायगी ठीक नहीं हुई, तूने फिर पूछा, मैंने फिर चूम के कहा कौवा, तूने फिर पूछा, मैंने फिर चूम के कहा कौवा, तूने 40 बार पूछा, मैं तो गुस्से में नहीं आया था, मैंने तो हर बार मोहब्बत से तेरी गाल चूमी और कहा था कौवा। जब मेरी बारी आई तो दूसरी बार में गुस्सा आ गया। हम इनका बदला नहीं दे सकते, मोहब्बत करना है इनके साथ। और मैं बच्चों को कहा करता हूं जी बाप होता क्या है, वो मैं भी बड़ी लेट गया, लेकिन अरे जी बाप क्या होता है मुझे मेरे छोटे बेटे ने सिखाया, इब्राहिम तो बाप क्या होता है। अल्लाह ने पहला बेटा दिया, फिर बेटी दी, फिर बेटी दी। जो मेरा इब्राहिम है उसने मुझे सिखाया कि बाप क्या होता है। लेकिन ये है कि तब तक मैं खुद भी बड़ा लेट हो चुका था। अब मैं निकल आया हूँ, आज रात लाहौर ठहरूंगा, कल प्रोग्राम करके जाऊंगा। जो हजरत जी मुलाकात होनी है ना मेरी और उसकी, पहली बच्चा है ना 3 साल के, तो इसी तरह होनी है, या आगे से पकड़ेगा या पीछे से पकड़ेगा। बाबा फाइटिंग, मेरी उम्र 38 साल है, उसकी उम्र 3 साल है, मैं उससे 35 साल बड़ा हूँ। जितना मर्जी जोर ला ले मैं ढा कोई नहीं सकता है, लेकिन जी 35 साल बड़ा होने के बावजूद मैंने से कुश्ती हारनी है। 35 साल बड़ा होने के बावजूद मैंने उससे कुश्ती हारनी है। इसको कहते हैं वालिद, जो 35 साल बड़ा होके जानबूझ के कुश्ती हार जाता है, इसको कहते हैं वालिद। तुम्हें क्या बता वालिद क्या होता है, लेकिन क्योंकि मैंने कहा कसूर हमारा भी बड़ा है,
हमने तरबियत ही नहीं की सवा। वो इस वक्त एक कोने में खड़ा है, इसको कहते, मैंने कहा उसने मुझे सिखाया, जो बड़ा है वो डरता है, उन्हीं के पास आता, वो भी बच्चा छोटा कुछ, मैंने भी, मुझे जबरदस्ती पकड़ेगा, नीचे कर लेगा, घोड़ा बनो, मेरी कमर पे बैठ जाएगा। याद रखना वो किसी वक्त तुम्हारा घोड़ा भी रहा होता है, वो किसी वक्त तुम्हारा घोड़ा भी रहा होता है, लेकिन जब हमारा वक्त आता है हम उसको पूछते नहीं। कभी वो चाय वाली दुकान पे बैठ के अपना दिन गुजारता है, कभी वो किसी जगह बैठ के अपना वक्त गुजारता है, उसके लिए कुछ है ही नहीं हमारे पास। किसी ने कलाम नहीं लिखा, अगर किसी ने लिखा तो किसी ने पढ़ा नहीं। माँ के लिए बहुत कुछ लिख दिया गया, ठंडियां छावां मीने अनंदी दुआ जन्नत दी, मैं किसी चीज का इनकारी नहीं हूं, लेकिन बाप के लिए क्यों नहीं कुछ बोला गया? मैंने बड़ा तलाश किया तो मुझे एक फिक्रा मिला बाप के लिए, वो भी किसी ने बाप को अच्छे लफ्जों से याद नहीं किया था। की भला ये प्यो दियां गालां ते घ्यो दियां नालां, याद में फिर गालां नाल ही कीता, उसकी मजदूरी किसी को नजर नहीं आई है, उसका वो बारिश में भी मोटरसाइकिल पे ड्यूटी पे जाना किसी को नजर नहीं आया, उसका वो धुंध में भी निकल जाना किसी को नजर नहीं आया, उसका वो जून की दोपहर में भी मजदूरी करना किसी को नजर नहीं आया, उसका वो खंबे पे चढ़ना, उसका वो 7वीं मंजिल को बाहर गो पे खड़े होकर टैले लगाना किसी को नजर नहीं आया, उसका वो सड़क खोदना किसी को नजर नहीं आया, अगर नजर आई तो फिर उसकी गालियां ही नजर आई। इसलिए हजरत जी दोनों की बड़ी कदर करना, डंडी ना मारना। तुम्हें नहीं पता हजरत क्या क्या होता है, तो फिर औलाद जवान होती है हजरत, लेकिन ये बारी आती है औलाद की। मैं अपने वालिद साहब के निकाह के कुछ 17 साल बाद पैदा हुआ हजरत, मैट्रिक किया, 16-17 साल उसमें भी लग गए, तो मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, तो अल्लाह पाक ने सोच बदल दी, दिल में डाला। हालांकि वो वक्त नहीं था, अब वक्त था अबू जी के घर बैठने का, क्योंकि पहले बुढ़ापे में पैदा हुआ, अबू जी की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। तो मैंने कुरान पाक याद करने की इजाज़त मांगी, मिल गई। फिर मैंने कहा अगर इजाज़त दें तो आगे दरस निज़ामी पढ़नी है, उसकी भी मिल गई। उसके लिए फिर लाहौर जामे निज़ामी आ गया। वो फिर क्या हुआ, जो अबू जी के घर बैठने का वक्त था ना, वो फिर मेरे अबू जी ने मेरे लिए मजदूरी की है। वापडा में मुलाजिम थे, लाइन मैन थे। एक दिन ऊपर काम कर रहे थे, करंट लगा, ऊपर से नीचे गिरे, यहाँ से बाजू टूट गया। फिर एक दिन ऊपर काम कर रहे थे, तार को हाथ लग गया, ऊपर जो बड़ी तार है वो इधर से सारा हाथ जल गया। बहुत कुछ देखा अल्लाह ना। वो मैं कभी कभी ना अपने जो क्लिप में ना नीचे कमेंट्स पढ़ता, एक दिन वालिद के वाले से क्लिप था, तो नीचे किसी ने नहीं लगता है मिस भाई क्या आप बंदा बोले जो नीचे लिखते हैं, बस को मेरी वालदा के वाले से किसी ने कुछ लिखा हुआ था कि लगता है माँ चंगी नहीं सी है। अजीब है ना, किसी की आप जुबान को पकड़ तो नहीं सकते। अब मेरी इस गुफ्तगू से कोई क्या अखज़ कर रहा है, मैं नहीं, अल्लाह मैं को माँ की मुखालफत में नहीं बोल रहा, कि ये नहीं कह रहा कि भाई मामा घरों काट दे, नहीं, मैं कह रहा हूँ उसकी इज्जत तौकीर शान अपनी जगह है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ भाई बाप क्यों हर खाते से निकल गया। उसने नीचे लिखा था लगता मिस भाई की मां ही चंगी है, ता जड़ा ना। अल्लाह हज़रत जी मेरे वालिद साहब इतने सख्त थे कि मैं आपको बता नहीं सकता, इतने मेरे वालिद साहब सख्त थे कि मैंने इतनी बार अपने अबू जी से मार खाई हुई, बहुत ज्यादा सख्त थे मेरे वालिद साहब। लेकिन क्या सख्त जो है वो वालिद नहीं है उसकी नहीं, मुझे भेजा हजरत, खुद मजदूरी की हजरत, अल्लाह का शुक्र है वापस गया। वालदा साहबा की दुआएं, मेरे वालिद साहब की मेहनत रंग लाई। अल्लाह ने बड़ी छोटी उम्र में मुझे बहुत कुछ अता कर दिया। एक दिन ना मैं और अबू जी कहीं चले गए, वालिद साहब ने ना अंगूठा लगाना था। हो सकता है इससे पहले कितनी बार ये मामला हो चुका था, मैं पहली बार गया। हम गए, वालिद साहब ने ना वो मशीन के ऊपर अंगूठा रखा, वो अंगूठा ही ना आए। जो बेटी बैठी थी ना ऊपर, वो मुझे कहने लगी हजरत आप इस तरह करें, बाजार से ना कोई लोशन लाएं और लाके इनके अंगूठे पे लगाएं। उसको ये था कि अंगूठे पे कोई मैल शैल लगी हुई है, लाके ना अच्छी तरह लगाएं और फिर अंगूठा लगाएं, लग जाएगा। मुझे आज भी याद है, मैंने हजरत जी केयर का लोशन खरीदा, छोटा वो जो इतना का आता है, वो मैं लाया। मैंने अबू जी को कहा अबू जी हाथ दिखाओ, अबू जी ने हाथ दिखाया। तो मैं जब अबू जी के अंगूठे पे लोशन लगाने लगा ना, तो अंगूठे पे लाइनें नहीं थी, घिस चुकी थी, क्योंकि बड़ी सख्त मजदूरी की थी अबू जी ने।
वो पौड़ी पे चढ़ना, वो जनाब प्लास पकड़ना, वो तारें खींचनी। तो मैंने देखा कि हाथ पे अंगूठे पे लकीरें कोई नहीं। मैंने बड़ा हैरान होकर अर्ज किया, मैं अबू जी लकीरां कित्थे गईयां? तो मुंह को कहन लगे, चलिया तेरियां बनांदियां बनांदियां मेरियां मिट गईयां हैं। उसकी मिटती हैं बोतल, फिर हमारी बनती है। इसलिए बड़ी कदर करना अपने वालिदैन की, बड़ी कदर। मेरे पास हज़रत जी जब तक थे ना, कोई मुश्किल होनी ना। वालदा साहबा तो बहुत जल्दी इंतकाल कर गई। तो मेरे वालिद साहब को ना जलेबियाँ बड़ी पसंद थी। मैं आप सब बच्चों से कहूँगा ध्यान रखा करो क्या पसंद है दोनों को, अक्सर लेके जाया करो, अक्सर अपनी पॉकेट मनी से ना ले जाया करो। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह खुद ही तो, मेरी हज़रत जो पहली सैलरी आई ना, ये दौराने तालीम, ये नहीं, वालदा साहबा इंतकाल कर गई। तो मुझे याद है उस वक़्त मेरे अबू जी की 52,000 तनख्वाह थी वापडा में। मेरी पहली सैलरी 3,000, मैंने अपने वालिद साहब को शूज़ लेके दिए। इतने खुश हुए, बल्कि रो ही पड़े। और उन कहने लगे यार तेरी 3,000 तनख्वाह है, मैनू भी लोड़ तेरे। मैं नहीं, मेरी पहली तनख्वाह है। मैंने अपनी वालदा साहबा को सूट लेके दिया अपनी पहली सैलरी का। बड़ा ध्यान रखा करो, चले हो जिदे कोल मां पे उन्होंने तो लोड़ ही नहीं किसी दी। मेरे वाला साहब को जलेबियां बड़ी पसंद, एक खास दुकान है सियालकोट में, मैंने वहां से ले जानी, जाके पेश करनी। सख्त थे बड़े, एक ही आ मैं अबू जी जलेबियां ले आंदी ने मार मैनू मिठा खुआ खुआ के। चुप, कभी गुस्सा नहीं करना पता, मैं चुप। चल फिर हूँ लैन दिए नहीं तो दे कट के बह रहे हैं। मैं जनाब खोल के ना एक पेश करनी, आपने खा लेनी, एक दे और दे, एक और देनी, बाप है ना जी। दूसरी खाते खाते रो पड़ते थे। फिर दुआ करनी, या अल्लाह ये मेरा ध्यान रख दे, तू ऐदा रखी है। अल्लाह मेरा ध्यान रख दे, तू ऐदा रखी, ये मैनू खुश रखता है, तू है खुश रख। जितने नौजवान मित्र बड़े 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 लाड करो इनके से। मेरे पास तब होती साइकिल थी, मैं मेहरान से चला हूं, अल्लाह ने बड़ी गाड़ी दी है, लेकिन आपको बता नहीं सकता हर बार दिल पे क्या गुजरती है। इधर सारे बैठते हैं मेरी गाड़ी पे, लेकिन सिर्फ वो नहीं है बैठने के लिए। सारे बैठते हैं, नई गाड़ी अल्लाह देते हैं, सब बैठते हैं, बड़े अथरू गिरते हैं, बच्चों के सामने नहीं रोता मैं, लेकिन सिर्फ वो नहीं है मेरे पास। फिर दिल करता है काश आज अम्मी जी होती, मैं उनके लिए दरवाजा खोलता, उनको अगली सीट पे बैठाता। काश अबू जी होते, उनके लिए दरवाजा खोलता, उनको अगली सीट। जिस जिसके पास है बेटा कदर करो इनकी राज्य के। मेरे पास साइकिल थी, वो भी मैंने अपनी सैलरी से ली है, सोहराब की साइकिल ली थी, 2400 की आई थी तब। तो मैंने अपनी वालदा साहबा की बारगाह में, अम्मी जी आओ तुहानू सैर करावा, उन्हें कहना कहा देते, मैं अम्मी जी साइकिल ते, तो उन्हें कहना साइकिल ते भी सैर होंगी है। अम्मी जी हूँ है ही साइकिल है, फिर करा की। फिर अम्मी जी ने साइकिल पे बैठ जाना। ये थोड़ी देर बाद ना अम्मी जी के रोने की आवाज़ कानों में आनी, या अल्लाह ये मैनू साइकिल ते सैर करांदा, तैनू महंगियां महंगियां गड्डियां ते सैर कराई है। दुआई लो, ठीक है जिन्हें काके दुआई लो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, धोखा न दो, कम न तोलो, मिलावट न